اتنا شادی خاک کروں. السلام علیکم. AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں فاروق بھٹا. اس وقت ہم ایک شادی کے ایونٹ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں جو ڈولیاں بناتے ہیں اور مختلف بناؤ سنگار کرتے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی اور انتہائی برق رفتاری کا دور ہے تو اس میں ان کا کام کیسا چل رہا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد اسلم ہے جی میرا نام. جی اسلم صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پہلے لوگ بہت شادیوں پہ خرچہ کرتے تھے، ہاں جی. اب کی کیا صورت ہے؟ اب جو باقی جو ایسے ہیں جو بھی کرتے ہیں کراتے، پہلے کرتے تھے اب تو نہیں ہیں. اب وہ گاڑی میں جاتے ہیں، ہمارے پاس اب آتے نہیں، کم ہیں گاہک، اب کم آتے ہیں. پہلے پرانا تھا رواج، پرانا رواج ہم نے شروع کر رکھا، ڈولیاں رکھ رکھی ہم نے اس واسطے مطلب بچوں کی روزی کریں. 15-16 سال سے کام کر رہا ہوں. یہ ایسے کام کر کے جو بھی ہے بچوں کے پیٹ پال رہا ہوں. جو ہوتا ہے صاحب صحت وہ لے جاتا ہے، جو ہوتا ہے غریب آدمی وہ نہیں لیتا. آگے سارے لے لیتے، تب وہ ہمارے پاس بات نہیں ہے، وہ والی بات نہیں ہے پہلے والی. جی اسلم بھائی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ہمارے ساتھ احسن صاحب موجود ہیں جو جدی پشتی یہ کام کر رہے ہیں. ان کی تیسری نسل ہے جو یہ ڈولیاں سجا رہے ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی اور یہ کام کیسے چل رہا ہے. پہلے اتنا بھی دور اچھا تھا، وہ ہر بندہ آتا تھا پسند کر کے لے جاتا تھا. اب وہ کوئی سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے بھی کتنے کی لینی ہے کتنے کی نہیں لیتی. جب بتاتے ہیں 2000 روپے تو وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں بھی کس چیز کا 2000 تھے. آپ کام اتنا ڈھیلا ہوا پڑا ہے. ناظرین اس وقت مہنگائی کا جو طوفان ہے اور جو برق رفتاری ہے اس میں سبھی پس رہے ہیں اور سب اس حوالے سے نالاں بھی ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں شادی پہ جو بگی سجائی جاتی ہے اس بگی کی طرف، تو اس طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہم شادی کے موقع پر سجاوٹ کے لیے جو اہم جزو سمجھا جاتا ہے، سجاوٹ کا سامان، اس ایک دکان پر موجود ہیں جو ان کے مالکان ہیں. ان سے بات چیت کر رہے ہیں. تو محمد خالد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاروبار کی جو صورتحال ہے وہ تو بہت ڈاؤن ہے. پہلے سیل بہت زیادہ ہوتی تھی، اب نہیں ہے، بہت کم ہے. باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ بہت شکایت کرتے ہیں مہنگائی کے بارے میں. تو یہ اب وہ والے حالات نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. اس نے جو ہے نا جی مہنگائی نے غریب کی کمر جو ہے وہ توڑ دی ہے. تو اب تو لوگوں کو تو اپنی بجلی کے بل، گیس کے بل، ان چیزوں کی پڑی ہوئی ہے. تو باقی شاپنگ یا خریداری انہوں نے کیا کرنی ہے. لاکھوں روپے کا بزنس ہے، کام کر رہے ہیں،
लेकिन यह है कि गाहक जो है वो आ नहीं है, बल्कि यूँ समझ लें कि भाई ये काम जो है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, ये जो सामान आप लाते हैं ये कहाँ से लाते हैं? ये मुख्तलिफ़ जगह से, लाहौर से भी आता है, कराची से भी आता है, इस्लामाबाद से भी आता है, जहाँ जहाँ इनकी मेन मार्केटें हैं होलसेल की, ये हम वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। तो इस काम में मतलब जो रेट बढ़ गए हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो बराह रास्त उस पर आप पर भी असरअंदाज होता है और कस्टमर पर भी असरअंदाज होता है। तो वो क्या, उनकी तरजीहात क्या होती हैं? पहले बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते थे, अब क्या करते हैं वो? मिसाल के तौर पे पहले अगर उनका बजट 20-25 हज़ार रुपये में है, अगर उन्होंने एक सजावट करवानी है, तो अब वो जो 30-35 हज़ार का या 40 हज़ार तक पहुंच गया है। तो वो ज़ाहिर लोग चाहते हैं अभी हमें तो उसी रेट में मिले जिस रेट में हम पहले ख़रीदारी करते हैं। तो ज़ाहिर उसमें हमें भी परेशानी होती है और गाहक को भी परेशानी होती है। पहले वाली मैंने बताया, पहले सादा दौर था, गुलाब के फूल ले लिए या कोई और मोतिया का ले लिया, उससे काम चल जाता था। अब इसके बगैर नहीं चलता। अब तो जो नौजवान नस्ल है वो ये कहते नहीं हमें ये भी सजावट चाहिए, ये भी चाहिए, तो उसके लिए तो फिर ये आर्टिफिशियल जो है ना उससे ही काम चलता है। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सैफुर्रहमान भाई, आप बताइए इस वक्त तो शादी का जो सामान है या मेहंदी का सामान है वो शादी हाल से ही अवेलेबल है इजीली, तो आपके कारोबार पर कितना असर होता है? हमारे कारोबार पर इस सिलसिले में बहुत असरअंदाज हुआ है ये मामला जो है ना। जिस तरह आजकल तरक्की हो रही है ना, लोग सोशल मीडिया पर जा रहे हैं वहाँ से वो जो चीज़ें अचीव करते हैं, देखते हैं, वो उसकी लाने की कोशिश करते हैं। वो इस वजह से जो है ना शादी हाल वाले या मैरिज हाल वाले जो है ना, ये सारी उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए इनका सामान जो है ना वो अवेल कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लोकल काम है ना वो उसका जो है ना वो बहुत डाउन हो गया है। लोग जो है ना अब सोशल मीडिया पर ज़्यादा चले गए हैं, ठीक है ना। पहले जो होता था कि 8-8 10-10 दिन एक शादी का एक माहौल बनता था, अब वो माहौल नहीं बनता। अब तो एक तो बात ये है कि एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, दूसरा लोगों के पास टाइम नहीं है। वो अगर अपना रोज़गार छोड़ते हैं, शादी के इवेंट अटेंड करते हैं, तो उनको वो अपना उसके लिए मसला पैदा हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर वो इस वजह से जो है ना टाइमिंग नहीं होती, इसलिए लोग जो है ना 8-8 10-10 दिन का जो शो अपने घर पर जो प्रोग्राम करते हैं वो नहीं करते। और सारा जो मेहंदी का जो काम है या उपटन का जो इनका प्रोग्राम होता है वो मैरिज हाल से वो यकमुश्ती कर लेते हैं, ताकि उनकी जो है ना क्या कहते हैं काम की सरगर्मी में कोई असरअंदाज ना हो। जी सैफुर्रहमान भाई, मुझे आपसे ये पूछना है कि पहले एक तो नोटों के हार, सेहरा, अब आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो इन चीज़ों को लाइक नहीं करती। वो सिर्फ़ एक माला तक महदूद है, एक माला पहना के, जैसे कि अब आपने मतलब पहनी हुई है माला पहन के तो शादी में शिरकत कर लेते हैं और रुखसती भी हो जाती है। इस हवाले से क्या कहेंगे? असल में पहले जो रवाज था ना, वो रवाज ये था कि नोटों के ऊपर उसकी बोझ जो है ना उसकी तंजीम और राइश की जाती थी। अब जो लोग जो है ना इससे हट गए हैं और इसलिए जो है ना वो मुख्तसर सा काम करते हैं, ठीक है ना। वो बिल्कुल जो भी उन्होंने जिस हिसाब से भी माला पहननी होती है, पहनानी होती है, तो वो उस हिसाब से पहना जाते हैं। तो वैसे भी पाकिस्तान में जो है ना ये अब ट्रेंड जो है ना ख़त्म होता जा रहा है। ये सिर्फ सिंपल माला पर ही आता जा रहा है, ठीक है ना। फ्रेश की माला होगी जिस तरह ये मैंने पहनी हुई है, ठीक है, इस तरह की माला पर जो है ना अब लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बजाय ये है कि नोटों के हारों पर तवज्जो देते हैं। हाँ, जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं उसमें आज भी अभी तक यही रवाज है। तो वो जिसकी वजह से एक तो महंगाई हो गई है, दूसरा जो है ना नोटों के हारों के ऊपर जो वो ऊपर एक्स्ट्रा जो पैसे लेते हैं वो लोग जो है ना अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए वो ये सोचते हैं कि सिंपल सा हम काम करें, अच्छी सी कोई माला ले लें, उसके ऊपर जो भी हमने जो भी लेन देन करना है वो करके फारिग हो जाए। इसलिए ना लोग जो है ना इस तरह सिंपल माला की तरफ आते जा रहे हैं और नोटों की तरफ से उनका रुझान जो है ना वो कम होता जा रहा है। अच्छा, आजकल की बीवियां बहुत शकी हैं। अगर आपका ये गेटअप जो है इसमें कोई वीडियो आपके घर तक पहुंच जाती है तो क्या हाल होगा? जी देखें जी, मैं तो अपनी बेगम से 4-5 दिन हो गए, यही मैं कह रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। आपके जो चैनल से मुझे लग रहा है कि मुझे आज रात घर नहीं जाना पड़ेगा। और जो है ना जो मेरे हालात जो है ना मेरे दोस्त मेरे साथ कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए ये मेरे जो है ना दोस्त नहीं है। ये इंशाल्लाह जन्नत में तो हम इकट्ठे होंगे, मगर लितर खा के इकट्ठे होंगे। इतना मेरा गेटअप बनाकर किसी ने सलामी नहीं दी जी। आप ये देखें कारोबारी हालात देखें, जितने भी हमारे यहाँ जो दोस्त अहबाब हैं माशाल्लाह सारे जो है ना बिज़नेसमैन हैं, तो वो अब इसी परेशानी में फंसे हुए हैं
देखें जी किसी ने सलामी नहीं दी, ये देखें ये पहला बंदा आया है, ये देखें ये सलामी दे के जा रहा है। यार थैंक यू वेरी मच, आपसे उठकर मैं बाद में मिलूँगा, ठीक है ना, शुक्रिया जी। यार ये आपने मुझे सलामी दी है, बिजली का बिल दिया है, ये भरना ना आपने, यार ये ज़्यादती है यार, ये आपने भरना है। ठीक हो गया जी, मेहरबानी आपकी सलामी डालने का, शुक्रिया। 2-3 बिल और हैं वो भी दे दें मुझे। अस्सलाम वालेकुम। हम सारे कोल ना ई टाइम मुहम्मद अज़हर अवैसी साहब हैं ते उन्हां दा बड़ा वसी तजर्बा है पिया शादी दे डेकोरेशन दे हवाले नाल भी, और बड़ा अच्छा काम करेंदे न। ते उन्हां कोलों पुछसूं कि वो क्या ई वक्त दे हालात, मौजूदा हालात के मुताबिक क्या आदन। बस ये हालात तो बड़े ख़राब हैं, कारोबार है इनको है ना, लोग बड़े परेशान हैं। शादियाँ बहु जो है ना घाट थिने पे, पहले शादियाँ बहुआन माशाल्लाह, हुण एडे शादियाँ कोई नहीं, हर बंदा परेशान बड़ा मजबूर है। लोग बड़े मुश्किल नाल, लोग रोटी नहीं पूरी सही नहीं, लोग शादियाँ कितों करे थे, एडे हालात बड़े ख़राब हैं। बस क्या करूँ समझ नहीं आनी भाई, बंदा कित्था बने। ये तुहारे नाल आटा जो मौजूद है ये तुस कित्थों आंदे पिया वे? और सही मैं आंदा पिया रस्ते चों, 150 बंदे की लैन आई, एडी मुश्किल नाल आटा गिद्धे मार मार के मिलता ही कोना पिया आई, इतना शादी खाक करूँ। मेरे परेशान है, बस आटा जी में घना मेरे को पता है। जी, इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। फारूक भुट्टा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।